کی مثال گدھے جیسی ہے کہ گدھے نے اپنے اوپر کتابوں کا بوجھ لاد رکھا ہے۔ بزرگوں، دوستوں، ایک طرف تو یہ ہے کہ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ اگر ہمیں عربی زبان نہیں آتی تو کسی ترجمے کا سہارا لینا چاہیے۔ دوسری طرف یہ بھی بات کہنا درست نہیں ہے کہ جو شخص ترجمے کے ساتھ قرآن کو نہیں پڑھتا تو بیکار ہے، فضول ہے، کیونکہ یہ بھی بات سراسر غلط ہے۔ کیونکہ قرآن نازل ہوا عربی میں، قرآن در حقیقت عربی میں جو نازل ہوا وہی ہے۔ قرآن کا ترجمہ ہے، معنی ہے، قرآن نہیں ہے۔ قرآن اگر کوئی پڑھتا ہے بغیر ترجمے کے تو یقیناً اسے ثواب ضرور ملے گا، جیسے کہ ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1003، کہ کوئی شخص قرآن کی قرأت کرے اور وہ قرآن کا ایک لفظ پڑھے تو اسے 10 نیکی، اور الف لام میم ایک نہیں بلکہ الف ایک، لام ایک، میم ایک، تو ایک ایک حروف کے اوپر 10 نیکی، اسے الف لام میم پڑھنے کا ثواب 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ لیکن صرف اگر وہ ہر حروف کے بدلے 10 نیکی کے لیے کوشش کرے تو نیکیاں تو ضرور ملیں گی، ثواب تو ضرور ملے گا، لیکن مقصد فوت ہو جائے گا۔ جو مقصد کے لیے قرآن نازل ہوا کہ یہ انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب بنے، وہ مقصد فوت ہو جائے گا۔ تو یہ کہہ جانا کہ ثواب نہیں ملے گا بغیر ترجمے کے اگر کوئی پڑھتا ہے، یہ بات درست نہ ہوگی، یہ دوسری حد تک پہنچنے کی بات ہوگی، اور قرآن اس کی طرف بھی ہمیں رہنمائی کرتا ہے کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر سورۃ النساء 4 نمبر کی سورت اور 171 نمبر کی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اہل کتاب تم اپنے دین میں تجاوز نہ کرو، ایکسٹریم میں نہ جاؤ۔ تو ایک جانب یہ نہ کہنا چاہیے کہ قرآن بغیر سمجھے اگر کوئی پڑھتا ہے تو اسے ثواب نہیں ملے گا، ثواب تو ضرور ملے گا لیکن مقصد حاصل نہ ہوگا، مقصد حل نہ ہوگا۔ ہمارے اندر ایک عجیب غلط فہمی یہ بھی موجود ہے کہ ہم کو قرآن غیر مسلموں تک نہیں دینی چاہیے، غیر مسلم کو قرآن ہم کو دینا نہیں چاہیے۔ حالانکہ قرآن کے اندر کہیں پر بھی یہ بات ایسے نہیں آتی کہ یہ قرآن للمسلمین ہے، مسلمانوں کے لیے، بلکہ کئی آیتیں ایسی ہیں جو صاف صاف کہتی ہیں کہ یہ للناس ہیں، ساری انسانیت کے لیے ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ الابراہیم 14 نمبر کی سورت اور 52 نمبر کی آیت میں ہے، اللہ پاک کہتا ہے ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے انسانیت کے لیے، ساری انسانیت کے لیے۔ پھر اللہ پاک یوں فرماتا ہے سورۃ الابراہیم 14 نمبر کی سورت اور 1 نمبر کی آیت میں، الف لام را کتاب انزلناہ الیک، کتاب نازل کی تمہاری طرف، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لاؤ۔ تو ساری انسانیت کے لیے، سارے لوگوں کے لیے۔ سورۃ الزمر 39 نمبر کی سورت اور 41 نمبر کی آیت میں ہے کہ یہ کتاب للناس ہے، سارے لوگوں کے لیے۔ سورۃ التکویر 81 نمبر کی سورت اور 27 نمبر کی آیت میں ہے للعالمین، سارے عالم کے لیے ہے۔ سورۃ القلم 68 نمبر کی سورت اور 52 نمبر کی آیت میں للعالمین، یہ سارے عالم کے لیے ہے۔ سورۃ البقرہ 2 نمبر کی سورت اور 185 نمبر کی آیت میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان مہینے کے اندر نازل کیا ہم نے قرآن، ھدی للناس، یہ ہدایت ہے انسانوں کے لیے، سارے انسان کے لیے، کہیں پر بھی للمسلمین نہیں ہے۔ یہ بھی کہنا درست نہیں ہے کہ قرآن اس لیے غیر مسلم کو نہیں دینا چاہیے کیونکہ اسے بغیر پاک ہوئے اسے چھونا جائز نہیں، اور وہ اس تعلق سے سورۃ الواقعہ کی آیت پیش کرتے ہیں۔ سورۃ الواقعہ 56 نمبر کی سورت 77 سے 80 نمبر کی آیت تک، انہ لقرآن کریم، بے شک یہ قرآن کریم ہے، فی کتاب مکنون، جو کتاب مکنون میں ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اور اس کو نہیں چھوتے مگر طاہر لوگ، مگر پاک لوگ۔ غور کرنا چاہیے کہ یہ بات
کیفی ہے کہ اس کو نہیں چھوتے مگر جو پاک ہیں، مگر جو وہ لوگ جو طاہر ہیں. یہ بات ہو رہی ہے لوح محفوظ کی. پھر سے غور کریں، انہ لقرآن کریم، یہ قرآن کریم ہے، فی کتاب مکنون، جو کتاب مکنون میں ہے. یہ قرآن کریم لوح محفوظ میں ہے، کتاب مکنون لوح محفوظ ہے، اور اس لوح محفوظ کو نہیں چھوتے مگر پاک لوگ. یہ اس ضمن میں بات کہی جا رہی ہے کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو یہ ایلیگیشن، یہ الزام لگایا گیا کہ یہ قرآن تو شیاطین لے آتے ہیں. اللہ پاک اس کا جواب دیتا ہے کہ اس کو شیاطین کیسے لا سکتے ہیں؟ اس کو تو جو پاک ہیں وہی چھو سکتے ہیں، جو ناپاک ہیں، جو طاہر نہیں وہ چھو ہی نہیں سکتے. تو شیاطین قرآن کو لے آئے، یہ ہرگز ایسی بات نہیں ہو سکتی. دوسری بات، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے خطوط جو انہوں نے دعوت کے طور پر غیر مسلم بادشاہوں تک پہنچایا، ان خطوط میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی آیات کا استعمال کیا. یہ خطوط ان بادشاہوں نے، کئیوں نے قبول کیا اور کچھ نے اس کو ریجیکٹ کیا اور روندا بھی. اگر اللہ کا رسول قرآنی آیات خطوط کے ذریعے سے غیر مسلموں کے ہاتھ میں پہنچا سکتا ہے تو اس سے بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ غیر مسلم تک قرآن دیا جا سکتا ہے. قرآن کی ایک آیت پر غور کریں، سورۃ النساء 4 نمبر کی سورۃ 82 نمبر کی آیت، یہ کہتی ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن پر غور نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ اللہ کی جانب سے نہ ہوتا تو اس کے اندر بے شمار اختلافات پاتے. یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ یہ غیر مسلموں سے کہا جا رہا ہے کہ کیا وہ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کی جانب سے نہ ہوتا تو اس کے اندر بے شمار غلطیاں پاتے، بے شمار اختلافات پاتے. اگر یہ چیلنج غیر مسلموں تک کے لیے ہے تو ظاہر ہے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ کتاب کو پڑھیں، دیکھیں کہ اس کے اندر کوئی اختلافات نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. تو بات صاف معلوم ہو جاتی ہے کہ قرآن اور قرآن سے کہ یہ کتاب غیر مسلموں کو دی جا سکتی ہے. یہ للناس ہے، للمسلمین نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ETV اردو پر اگلا پروگرام آدابی ٹی انڈیا میں آپ کا خیر مقدم ہے. سب سے پہلے سرخیوں پر ایک نظر. دہلی میں بی جے پی کے گڑیالہ کے امیدوار ہرش وردھن کو لیفٹیننٹ گورنر نے آج طلب کیا. حکومت سازی پر کیا جائے گا تبادلہ خیال. رمن سنگھ آج لیں گے تیسری میعاد کے لیے چھتیس گڑھ کے وزیراعلی کے عہدے کا حلف. پارٹی کے سرکردہ لیڈرز کریں گے شرکت. آندھرا پردیش اسمبلی کے سرمائی اجلاس کا آج سے ہوگا آغاز. تلنگانہ بل پر ہو سکتی ہے بحث. سیکورٹی کے سخت انتظامات. سپریم کورٹ نے ہم جنس پرستی کو قرار دیا مجرمانہ فعل. عمر قید تک کی ہو سکتی ہے سزا. دہلی ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم. نظارے کے احتجاج میں آج کریں گے اروند کیجریوال شرکت. اسٹیج کے بجائے عام لوگوں میں بیٹھنے کا منصوبہ. حامد کرزائی 4 روزہ دورے پر آج پہنچیں گے دہلی. وزیر اعظم اور دیگر سرکردہ لیڈروں سے اسلحہ سپلائی اور دیگر امور پر ہوگی بات چیت. تفصیلات. دہلی کے سیاسی تعطل کو ختم کرنے کی پہل کرتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر نجیب جنگ نے بی جے پی کے وزیر اعلیٰ کے امیدوار ہرش وردھن سنگھ کو آج حکومت سازی کے سلسلے میں تبادلہ خیال کے لیے طلب کیا ہے. یاد رہے کہ اسمبلی انتخابات میں بی جے پی واحد بڑی پارٹی بن کر ابھری ہے، تاہم اکثریت سے محروم ہے. دہلی کے لیفٹیننٹ گورنر نجیب جنگ نے آخرکار بی جے پی کے وزیر اعلیٰ امیدوار ہرش وردھن کو حکومت سازی کے سلسلے میں تبادلہ خیال کے لیے طلب کیا ہے.
वाज़ेह रहे कि दिल्ली असेंबली चुनाव के नतायज मोहल्ला खाने से दिल्ली में जबरदस्त सियासी तातुल चल रहा है, क्योंकि किसी भी पार्टी के पास हुकूमत तश्कील देने के लिए दरकार अक्सरियत नहीं है। दिल्ली की 70 रुकनी असेंबली में बीजेपी को 32 और उसके हलीफ अकाली दल को 1 सीट हासिल हुई है, जबकि आम आदमी पार्टी को 28 सीटें हासिल हुई हैं। कांग्रेस का मुजाहिरा इंतहाई कमजोर रहा है। कांग्रेस 8 सीटों पर ही सिमट कर रह गई, जबकि 1 सीट आजाद उम्मीदवार और 1 सीट जेडीयू के खाते में चली गई। इस तरह असेंबली के नतायज मोहल्ला खाने से सियासी तातुल पैदा हो गया। वाज़ेह रहे कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने कहा कि वो किसी भी पार्टी की हिमायत नहीं लेंगे और न ही किसी पार्टी की हिमायत करेंगे। दूसरी जानिब कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के लिए गैर मशरूत तौर पर हिमायत का भी पेशकश किया है। बीजेपी के वजीर आला के उम्मीदवार हर्षवर्धन ने भी मीडिया को बताया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग ने उन्हें फोन किया और आज हुकूमत साजी के सिलसिले में तबादला ख्याल के लिए बुलाया है। हर्षवर्धन ने कहा कि उन्होंने गवर्नर को बताया है कि वो छत्तीसगढ़ के वजीर आला रमन सिंह की हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत के लिए आज रायपुर रवाना हो रहे हैं। वापसी के बाद गवर्नर से मुलाकात करेंगे। इस बात को लेकर भी तजस्सुस है कि आया हर्षवर्धन गवर्नर की जानिब से हुकूमत साजी की पेशकश को कबूल करेंगे या फिर उसे ठुकरा देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला रमन सिंह आज रियासत के वज़ीर आला की हैसियत से तीसरी मियाद के लिए हलफ लेंगे। इस सिलसिले में आज छत्तीसगढ़ की दारुल हुकूमत रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक तकरीब मुनक्किद की गई है। रियासत के गवर्नर उन्हें हलफ दिलाएंगे। इस तकरीब में बीजेपी के सरकर्दा लीडर एलके आडवाणी, नरेंद्र मोदी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, राजनाथ सिंह, वेंकैया नायडू, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान और दीगर शिरकत करेंगे। आंध्र प्रदेश असेंबली का सरमाई इजलास आज से शुरू हो रहा है। ये इजलास काफी अहमियत का हामिल है और तारीखी हो सकता है, क्योंकि इस इजलास में रियासत की तकसीम और तेलंगाना मुसवदे पर कानून साजों की राय जानी जाएगी, जिसके पेश नजर असेंबली अहाते और उसके आसपास सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। आंध्र प्रदेश असेंबली और कानून साज काउंसिल का सरमाई इजलास आज से शुरू हो रहा है। बुध को असेंबली बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने इजलास का एजेंडा तय किया। रियासत के वजीर उमूर मुकन्नना श्रीधर बाबू ने कहा कि असेंबली इजलास के पहले दिन नस्ल परस्ती के खिलाफ जद्दोजहद करने वाले अजीम अफ्रीकी रहनुमा भारत रत्न नेल्सन मंडेला को खिराज अकीदत पेश किया जाएगा। सरमाई इजलास 20 दिसंबर तक जारी रहेगा। इस इजलास में सिलसिलेवार तूफानों से मची तबाही, ब्रिजेश कुमार की क़यादत वाले ट्राइब्यूनल के फैसले, महंगाई और दीगर अवामी मसाइल पर बहस की जाएगी। ताहम सबसे अहम मसला तेलंगाना बिल पर कानून साजों की राय जानने का है। याद रहे कि सदर जमहूरिया ने बुध को तेलंगाना बिल पर कानूनी माहिरीन से राय हासिल कर ली है। खबर रसां एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सदर जमहूरिया ने तेलंगाना बिल को वजारत दाखिला को वापस रवाना कर दिया है। ताहम राष्ट्रपति भवन के जराये ने ये वाज़ेह नहीं किया है कि बिल क्यों वापस रवाना किया गया। रियासत के वजीर उमूर मुकन्नना श्रीधर बाबू ने कहा कि तेलंगाना मुसवदा मिलने के बाद बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की दोबारा मीटिंग होगी। सरमाई इजलास के पेश नजर असेंबली और काउंसिल के अहाते के अतराफ अकनाफ 2 किलोमीटर दूर तक इंतहाई सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। इजाफी सिक्योरिटी दस्तों को तैनात किया गया है। असेंबली की तारीख में इस तरह की सिक्योरिटी कभी भी नहीं देखी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई आज भी हंगामाराई की नजर होने के इम्कान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अपोजिशन पार्टियां 2G और जेपीसी रिपोर्ट पर अपने मौकफ पर अड़ी हैं, तो दूसरी जानिब सीमांध्रा से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेसी अरकान ने भी हुकूमत को बेदखल करने के लिए मुहिम तेज कर दी है। याद रहे कि सीमांध्रा से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस पार्टी के एमपीज ने हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का नोटिस पेश किया है। ताहम कल ऐवान में शोरगुल होने की वजह से इस पर बहस नहीं हो सकी, क्योंकि स्पीकर ने लोकसभा की कार्रवाई आज तक के लिए मुलतवी कर दी थी। मरकजी वजीर पार्लिमानी उमूर कमलनाथ का कहना है कि हुकूमत अपनी मियाद मुकम्मल करेगी और आम इंतखाबात तयशुदा वक्त के मुताबिक मई में ही होंगे। कमलनाथ का कहना है कि तेलंगाना मुखालिफ अरकान पार्लियामेंट की जानिब से अदम एतमाद की तहरीक लाए जाने के मंसूबे से हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। कमलनाथ ने कहा कि अगर अदम एतमाद की तहरीक पेश की जाती है तो वो कामयाब नहीं होगी, चूंकि हुकूमत के पास दरकार नंबर हैं। कमलनाथ ने मजीद कहा कि अब तक तेलुगु देशम के सिर्फ 4 अरकान पार्लिमान ने तहरीक के लिए लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार को नोटिस दिया है और स्पीकर इस मामले पर उसूल और ज़वाबित की रोशनी में फैसला करेंगी। हमजिनसी ताल्लुकात को सुप्रीम कोर्ट ने मुजरिमाना फेल करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला सुनाते हुए इन रिश्तों को जायज ठहराने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया है।
2 जुलाई 2009 को दिल्ली हाई कोर्ट ने हमजिन्स ताल्लुकात को जायज करार दिया था। मुख्तलिफ मजहबी और समाजी तंजीमों ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि ये मामला अदालतों के जरिए हल किया जाने वाला नहीं, बल्कि ये काम मुक़न्निना का है कि वो हमजिन्सी ताल्लुकात को नाजायज ठहराने वाले आईन की दफा 377 को खत्म करने के बारे में फैसला करे। जस्टिस GS सिंघवी और जस्टिस SJ मुखोपाध्याय की बेंच ने ये फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट को सेट असाइड कर दिया है और उन्होंने कहा है ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड प्रोविजन है और अगर यूनियन ऑफ इंडिया इसको अपने स्टैट्यूट बुक से हटाना चाहती है तो उनको अपनी लिबर्टी है, लेकिन जो दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। अगर ये फैसला हमारे खिलाफ है जैसे लग रहा है ऊपर से, तो हमारी लड़ाई जारी रहेगी, ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। हमजिन्स परस्ती के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द अमल जाहिर करते हुए मरकजी वजीर कानून कपिल सिब्बल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का काम ये तय करना है कि आया कोई कानून आईनी है या नहीं, और पार्लियामेंट का काम कानून साजी करना है। सुप्रीम कोर्ट का हक है कि ये तय करना कि कोई कानून संवैधानिक है या नहीं संवैधानिक है, और पार्लियामेंट का हक है कानून बनाना। वो अपना हक अदा करेंगे, हम अपना हक अदा करेंगे। JDU ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मुखालिफत करते हुए कहा है कि हमको सच्चाइयों से भागना नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो पलट दिया उसके साथ हम सहमत नहीं है। ये हाई कोर्ट का जजमेंट जो है बिल्कुल ठीक था। अब सच्चाई से कोई आंख मूंद ले और कहे कि नहीं साहब सुबह नहीं हुआ, तो इसका तो कोई अर्थ नहीं है। ये माने सदियों से हमको लगता है जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से ये सिलसिला जो है चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने गेंद हुकूमत के पाले में डाल दी है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि हुकूमत इस मामले पर क्या कदम उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने हमजिन्स परस्ती को गैर कानूनी करार दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी इस मामले में एक फरीक है। बोर्ड के वकील ने अदालत उज़्मा के फैसले पर इत्मीनान का इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के सन 2009 के उस फैसले को खारिज कर दिया है जिसमें हाई कोर्ट ने हमजिन्सी ताल्लुकात को जायज करार दिया था। ये फैसला मुख्तलिफ समाजी और मजहबी तंजीमों की अर्जदाश्तों पर सुनाया गया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी इस मामले में एक फरीक है। बोर्ड के वकील ने अदालत के फैसले पर कुछ यूं रोशनी डाली। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि सेक्शन 377 IPC का जो प्रोविजन है उसमें अगर दो कंसेंटिंग अडल्ट्स होमोसेक्सुअलिटी में इंडल्ज करते हैं तो वो क्राइम नहीं माना जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हम और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उसके खिलाफ अपील फाइल की थी और सुप्रीम कोर्ट ने हमारी अपील को एक्सेप्ट करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट को सेट असाइड कर दिया है और कहा है कि 377 IPC एक कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड प्रोविजन ऑफ लॉ है और वो उसमें अगर कोई इस तरह के काम करता है तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस होगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से अदालत में पेश किया गया जवाब कुछ इस तरह है। 377 कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड प्रोविजन है और हिंदुस्तान के कल्चरल और रिलीजियस एथॉस से भी बिल्कुल उससे मेल खाता है और इवन और दूसरी कम्युनिटीज के लोग, हिंदूज और क्रिश्चियन, सब ने इसको चैलेंज किया था और सुप्रीम कोर्ट ने हमारी दलीलों को माना है और आज दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट को सेटिस्फाइड कर दिया। हमजिन्सी ताल्लुकात पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तारीखी करार दिया जा रहा है। ताहम हमजिन्स परस्तों का कहना है कि उनकी लड़ाई जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। हमजिन्स परस्ती को मुजरिमाना फेल करार देने का फैसला सुनाने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस GS सिंघवी बुध के रोज सुबकदोश हो गए। जस्टिस सिंघवी अवामी मफाद के मामलों में मरकजी हुकूमत की सरजनिश करने के लिए जाने जाते हैं। 2G घोटाला हो या हालिया लाल बत्ती से लैस गाड़ियों के इस्तेमाल का मामला, जस्टिस सिंघवी ने जुर्रतमंदाना फैसला करके हुकूमत को सोचने पर मजबूर किया। नीरा राडिया मामले में भी 65 साला जस्टिस सिंघवी ने CBI की रहनुमाई करते हुए अच्छा काम लिया था। जस्टिस सिंघवी ने कई ऐसे मुतनाज़ मामलों में फैसले दिए हैं जिसकी वजह से अब भी सियासी लीडरों की नींद उड़ी रहती है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक वक्फे के बाद।
अपना उधर से इधर आना और यहाँ अंदर यूं कर, राइट, बंद किया, ये यहाँ इसे हटाया, बीच से काटा, ये ऐसे, और फिर मैं ऑडियंस। सर, आपका भाग्य फल। आज प्रेम प्रसंग के लिए दिवस बिल्कुल अनुकूल है। जब जिंदगी सताए मनोरंजन ही बचाए 5, 6, 7, 8, 9 लगाओ, एस्ट्रो क्रिकेट म्यूजिक कॉमेडी और बहुत कुछ पाओ। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग धब्बों झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। हिंदुस्तानी हुकूमत ने कहा कि सऊदी अरब में निताकात कानून की अमलावरी से हिंदुस्तानी मजदूर ज्यादा मुतासर नहीं हुए हैं। सऊदी अरब ने गैर कानूनी तौर से मुकीम मजदूरों को वापस भेज दिया है। इसके लिए 2 बार मोहलत दी गई थी। पहली बार 3 जुलाई और बाद में इसमें तोसी देते हुए 3 नवंबर तक मोहलत दी गई। ओवरसीज इंडियन उमूर के वजीर वायला रवी ने लोकसभा को बताया कि निताकात कानून की अमलावरी से हिंदुस्तानी मजदूर ज्यादा मुतासर नहीं हुए हैं। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नंदन नीलकनी को वजारत उज़्मा के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार की बात को पार्टी ने मुस्तरद कर दिया है। पार्टी ने नीलकनी को वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे का उम्मीदवार बनाए जाने की बातों को मफरूजा करार दिया। उन्होंने कहा कि यह खबर बेबुनियाद है। कांग्रेस तर्जुमान संदीप दीक्षित ने कहा कि पार्टी की आला क़यादत को वजारत उज़्मा के ओहदे के उम्मीदवार का इंतखाब करने का हक हासिल है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को कई लीडरों की हिमायत हासिल है। Information with regard to Mr. Nandan Nilekani being considered or not considered. So I am neither opening it nor closing it. This is something that a newspaper article has opened. And there have been speculations on the Prime Minister for the last 4 or 5 years. So this is another article that gives a speculation. And I have not heard or seen anything that permits me to believe that there is substance behind it. आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे की हिमायत के लिए आज रालेगंज सिद्धि जाएंगे, जहां अन्ना हजारे पार्लियामेंट में जन लोकपाल बिल की मंजूरी के लिए गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल पर हैं। आम आदमी पार्टी लीडर ने कहा कि वो और उनके साथी कुमार विश्वास आज अन्ना हजारे की हिमायत में आवाज बुलंद करेंगे। केजरीवाल ने वाज़ेह किया कि वो अन्ना के साथ स्टेज शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि अन्ना हजारे ने सियासी लीडरों के साथ स्टेज शेयर करने से इनकार किया है। केजरीवाल ने मजीद कहा कि वो आम अफराद के बीच बैठकर अन्ना की हिमायत करेंगे। मरकजी वज़ीर खजाना पी चिदम्बरम ने ये एतराफ किया है कि हालिया असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस की हार की वजूहात में इफरात ज़र की शरह में बेतहाशा इजाफा भी है। ताहम उन्होंने किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी में कटौती से इनकार किया। अब पछताए क्या होगा जब चिड़ियां चुग गई खेत। जी हाँ, ये मुहावरा मरकज की यूपीए हुकूमत पर सादिक आता है। मुल्क की 4 अहम रियासतों के असेंबली इंतखाबात में शिकस्त के बाद कांग्रेस के रहनुमा और वुज़रा अब इस बात का एतराफ करने लगे हैं कि इन इंतखाबात में पार्टी की शिकस्त की अहम वजूहात में महंगाई भी शामिल है। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी के बाद अब मरकजी वजीर खजाना पी चिदम्बरम ने भी एतराफ किया है कि अफरात ज़र की शरह में मुसलसल इजाफा कांग्रेस को दे डूबा। दिल्ली इकोनॉमिक कॉन्क्लेव के इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए चिदम्बरम ने कहा कि ये बात आमतौर पर समझ में आती है कि महंगाई में बेतहाशा इजाफे का खमियाजा हुकूमत को भुगतना पड़ा है। खास तौर पर अगर अफरात ज़र की शरह में एक लंबे अरसे तक इजाफा रहता है तो हुकूमत को इसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। ताहम उन्होंने कहा कि हुकूमत किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी में कटौती नहीं करेगी। मरकजी वजीर खजाना ने कहा कि बढ़ती अफरात ज़र की शरह पर काबू पाने का मामला हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। ताहम उन्होंने कहा कि पैदावार, मार्केटिंग के अलावा जखीरा अंदोजी और मुनाफाखोरी से सख्ती से निपटने की जरूरत है। उन्होंने महंगाई पर काबू पाने की जिम्मेदारी
रियासती हुकूमतों पर डालते हुए कहा कि महंगाई के मामले पर रियासती हुकूमतों के रोल को भी उजागर करने की जरूरत है। चिदम्बरम का कहना है कि मरकजी हुकूमत को अपने दायरा इख्तियार में जितना हो सके उस ताल्लुक से इक़दाम करने चाहिए। वाज़ेह रहे कि एक लंबे अरसे से ज़रूरी अशिया की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखा गया है, जिसकी वजह से मुल्क का गरीब तबका काफी परेशान है। खास तौर पर हालिया कुछ अरसे में प्याज की कीमतों में जबरदस्त इजाफा देखा गया। मुल्क के बाज इलाकों में प्याज 100 रुपए फी किलो भी फरोख्त की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। 14 दिसंबर से शुरू होने वाले भोपाल के सरोजा आलमी इज्तिमा की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। इन तैयारियों में रियासती हुकूमत का भी मुकम्मल ताउन रहा। वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने ईंट खड़ी पहुंचकर इंतजामात का जायजा लिया। इज्तिमा में शिरकत के लिए बैरूनी मुल्कों की जमातों की आमद का सिलसिला जारी है। तबलीगी सरगर्मियों के लिए भोपाल की सरजमीन काफी जरखेज साबित हुई है। यही वजह है कि छोटे पैमाने पर शुरू हुए तबलीगी इज्तिमा ने चंद दहाइयों बाद आलमी इज्तिमा की हैसियत हासिल कर ली। इसके लिए भोपाल की आवाम का जज्बा ईमानी और मध्य प्रदेश हुकूमत का ताउन भी अहम वजह रहा। 14 दिसंबर से शुरू होने वाले आलमी तबलीगी इज्तिमा के लिए तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है। ईंट खेड़ी के वसी व अरीज मैदान में होने वाले इस दीनी इज्तिमा की तैयारियों का जायजा रियासत के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने भी लिया। इस मौके पर वजीर आला ने कुछ इस अंदाज में अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। ये बहुत बड़ा धार्मिक आयोजन ही है, तबलीगी इज्तिमा, और लाखों की संख्या में यहाँ हमारे भाई आने वाले हैं। सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहे, कोई कठिनाई यहाँ ना हो और आयोजन आनंद के साथ, खुशी के साथ पूरा संपन्न हो। इसलिए मैंने ये आवश्यक समझा। बीच में चुनाव की व्यस्तताओं के कारण और आचार संहिता जैसी चीजों के कारण प्रशासनिक स्तर पर सारी तैयारियां जारी थी, लेकिन मुझे लगा कि कार्यक्रम शुरू होने के पहले, इज्तिमा शुरू होने के पहले एक बार सारी व्यवस्थाओं की जानकारी मैं खुद ले लूं। और मुझे खुशी है कि प्रशासन ने आयोजक साथियों के साथ मिलकर बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की है और कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न होगा, आनंद के साथ संपन्न होगा। और मुझे लगता है कि यहाँ जो दुआ होगी वो सबकी जिंदगी में खुशियां लाएगी। इज्तिमा के लिए 30 एकड़ जमीन पर पिंडाल लगाया गया है। 160 एकड़ रकबे पर पार्किंग की सहूलत रखी गई है। तमाम इंतजामी उमूर मुकम्मल हो चुके हैं। इंतजामी उमूर कमेटी के जिम्मेदारों का कहना है कि इस इंतजाम में रियासत के तमाम शोबेजात की हिस्सेदारी रही। इज्तिमा के लिए बैरूनी मुल्कों से आने वाले मंदूबीन को भोपाल की मस्जिदों में ठहराया गया है। हमारे यहाँ जमातें भी आना शुरू हो गई। फॉरेन की जमातें काफी आ रही हैं, जिसमें फिजी है, फ्रांस है, अमेरिका है, ब्रिटिश है और श्रीलंका है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है। ये सब जमातें आना शुरू हो गई। ये बागुला का पंडाल को बहुत बड़ा करा है और क्योंकि पब्लिक बहुत आने की संभावना है। पिछले साल से काफी पब्लिक आई है। सरोजा आलमी इज्तिमा 14 दिसंबर को फजर की नमाज के बाद से शुरू हो जाएगा और 16 दिसंबर को इज्तिमाई दुआ पर इख्तिताम होगा। इस मरतबा माहौलियात को आलूदगी से पाक रखने के लिए इज्तिमा गाह में पॉलिथीन बैग के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक वक्फे के बाद। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने POP, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। ईट इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। अफगानिस्तान के सदर हामिद करजई हिंदुस्तान के 4 रोजा दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। जुमे के दिन वो वजीर आजम मनमोहन सिंह से मुलाकात करेंगे।
بتایا جا رہا ہے کہ حامد کرزئی نے مئی کے مہینے میں فوجی ساز و سامان سے متعلق جو مطالبات کی فہرست ہندوستان کے حوالے کی تھی اس پر وہ وزیر اعظم سے بات کریں گے۔ خیال رہے کہ افغانستان کا ہندوستان سے مطالبہ ہے کہ وہ